Hello everyone. In this video, I'm going to teach you accounting for not-for-profit organization. After going through this topic, you will be able to identify the need for and the nature of accounting records relating to not-for-profit organizations. List the principal financial statements prepared by them, prepare the receipt and payment account, income and expenditure account, and balance sheet. There are two types of organizations: profit organizations and non-profit organizations. Certain organizations which are set up for providing service to its members and the public in general are called non-profit organizations. These organizations have service as the main objective and not the profit, as is the case of organizations in business. Such organizations include school, colleges and universities, hospitals, charitable institutions, religious institutions, sports clubs, etc. Let us discuss the meaning and features of non-profit organizations. Not-for-profit organizations refer to the organizations that are used for the welfare of the society and are set up as charitable institutions which function without any profit motive. Their main aim is to provide service to a specific group or the public at large. Their main features are: number 1, service motive. They are set up to provide service to a specific group or the public at large. Second is the form. These organizations are set up as charitable trust or society, and subscribers to these organizations are called the members. Third is the separate entity. NPOs are treated as a separate entity, distinct from its members. It is not affected by the entry or exit of any of its members. Fourth one is managed by elected members. These are managed by a managing or executive committee which is elected by its members only. Fifth feature is the major sources of income. Their main source of income is the subscription received from their members, donations, financial assistance from government in the form of grant, income from investments, etc. Sixth is the surplus not distributed. They do not distribute any surplus in the form of excess of income over expenditure. In fact, it is added to the capital fund. Next feature is the accounts. These organizations also need to maintain proper accounts to meet their legal requirements and to exercise proper control over the funds. Next is the form of accounts. They also prepare financial statements at the end of the year in the form of receipts and payment account, income and expenditure account, and the balance sheet. Let us discuss the accounting procedure of not-for-profit organizations. They prepare their annual accounts for consideration of its members because members have a right to know whatever is happening in these organizations, and they also need to obtain financial grants from the government department. So they keep their books of accounts, which includes the cash book, ledger, register of members, and register of assets. Final accounts of not-for-profit organizations are: normally, they do not undertake any business activity and are managed by the trustees who are fully accountable to their members and the society for the utilization of the funds. Hence, they also maintain proper accounts which include receipts and payment account, income and expenditure account, and the balance sheet. Firstly, the receipts and payment account. Receipts and payment account is the summary of cash and bank transactions which help in the preparation of income and expenditure account and the balance sheet. As such, a receipt and payment account is prepared at the end of the year
from the cash book. All receipts and payments which are entered in the cash book are also entered in the receipts and payment account, of course, in a summary form. For example, if a club receives subscription from its members on different dates, they will be recorded in the cash book in a chronological order, whereas the receipts and payment account will contain the total subscription received during the year. Any transaction which is not recorded in the cash book will not be recorded in the receipt and payment account also. The features are, it is a real account, hence the rule of real account is followed while preparing it. It starts with the opening balance of cash in hand and at bank. All cash receipts are shown on the debit side. All cash payments are shown on the credit side. Closing balance of this account shows closing balance of cash in hand and at bank, and non-cash items are not at all recorded in this account. And the main purpose of preparing receipts and payment account is to show the closing balance of cash in hand and at bank. Let us have a look at the receipts and payment account, how it looks like. Like in this particular example, receipts and payment account for the year ended 31st March 2020 is given. So on the receipt side, you can see that it starts with the opening balance of cash in hand and at bank. And there are number of receipts like from subscription. Now you can see that it is given subscription for the year 2018 and 19. So this is the previous year, 19 and 20 is the current year, and 2021 is the next year. So it hardly matters कि सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की है, प्रीवियस ईयर की है या फिर नेक्स्ट ईयर की है. अगर वो आपको करंट ईयर में रिसीव हुई है कैश में, तो आप उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. अगर आपको कोई भी पेमेंट कैश में रिसीव नहीं हुई है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी वो एंटर नहीं होगी. इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्रेंस फीस, डोनेशन, सेल ऑफ फर्नीचर, लॉकर्स रेंट, ये सभी हमें रिसिप्ट्स हुई हैं 2019 एंड 20 में. तो हम सभी इन रिसिप्ट्स को हमने रिकॉर्ड किया है. ऐसे ही हमारे पास पेमेंट्स के बारे में डिटेल दे रखा है. हमने सैलरी, इंश्योरेंस पे की, फर्नीचर को खरीदा. अब फर्नीचर यहाँ पे क्या है, ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है. तो चाहे यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हों या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हों, हमने इन सभी को अपनी पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करना है अगर हमने इनके लिए पेमेंट की है कैश में तो. इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है जो कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है. तो ओपनिंग बैलेंस भी होता है इसमें और क्लोजिंग बैलेंस भी होता है. तो ये आपके प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, हर तरह के ईयर के जो रिसिप्ट्स और पेमेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करता है. रेवेन्यू नेचर की आइटम्स को भी रिकॉर्ड करता है और कैपिटल नेचर की आइटम्स को भी रिकॉर्ड करता है. Now the difference between receipts and payment account and the cash book. Receipt and payment account is prepared on the basis of cash book and cash book is prepared on the basis of receipts and payment in chronological order. Second is समरी होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. किसकी समरी होती है? कैश बुक की. और कैश बुक जो है वो बनती है आपकी डेली बेसिस पे. इसका मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेली बेसिस पर नहीं बनता, वो बनता है एट द एंड ऑफ द ईयर में, जबकि कैश बुक बनती है डेली. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी लेजोफोलियो नंबर नहीं होता और कैश बुक में लेजोफोलियो नंबर होता है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता किसके बीच में, कैश एंड बैंक कॉलम्स के बीच में, जबकि कैश बुक में सेपरेट कॉलम होते हैं कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस के. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ही मेनली बनाती हैं और कैश बुक को हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की साइट्स मेनली रिसिप्ट एंड पेमेंट के नाम से जानी जाती हैं और कैश बुक की साइट्स को हम डेबिट एंड क्रेडिट साइट मोस्टली बोलते हैं. Let us take one example. From the following particulars relating to shift point, prepare a receipt and payment account for the year ending March 31st, 2017. तो यहाँ पे आपके पास particulars दे रखे हैं
और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे रिसिप्ट्स हैं और बहुत सारे पेमेंट्स हैं, तो हमें रिसिप्ट्स को अलग छांट लेना है और पेमेंट्स को अलग कर लेना है। जितने भी रिसिप्ट्स होंगे वो रिसिप्ट साइड पे आएंगे, जितने भी पेमेंट्स होंगी कैश वाली वो सारी की सारी हम पेमेंट साइड पे लिखेंगे। तो चेक करते हैं कौन कौन सी रिसिप्ट्स हैं। सबसे पहले तो स्टार्टिंग होती है ओपनिंग बैलेंस के साथ, तो ओपनिंग बैलेंस कैश, ओपनिंग बैलेंस बैंक, ये दोनों हम अपने रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन, हम सारी सब्सक्रिप्शन उठा लेंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर की है, करंट ईयर की है या नेक्स्ट ईयर की है। ऐसे ही सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये भी रिसिप्ट है। एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, ये भी हमारी रिसिप्ट है। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, अगेन इट इज़ ए रिसिप्ट। डोनेशन रिसीव्ड फॉर पेविलियन, तो ये एक स्पेसिफिक डोनेशन है, तो इसे भी हमने क्या कर लेना है, अपने रिसिप्ट साइड पे ले जाना है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कोई डिफरेंस नहीं करता रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर के बीच में। तो इन सभी रिसिप्ट्स को हमने अपने कहाँ शो किया है, ये हमने दिखाया है हमारी रिसिप्ट साइड पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारी पेमेंट्स कौन कौन सी हैं। रेंट पे किया हमने, स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा, हमने रिफ्रेशमेंट परचेज की, मेंटेनेंस की, टेनिस कोर्ट की, उसके लिए एक्सपेंसेस खर्चे, सैलरी पे की, टूर्नामेंट एक्सपेंस हुआ। इसके अलावा हमने फर्नीचर को ख़रीदा, तो फर्नीचर हमने परचेज़ किया, तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन इसको भी हमने लिखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की आइटम्स के बीच में कोई भी डिफरेंस हम नहीं करते हैं। तो ऑफिस एक्सपेंसेस, इसे भी हमने कंसिडर किया है। सो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पेमेंट साइड पे दिखाई हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस को। तो ये हमने कैसे निकालना है, ओपनिंग बैलेंस के साथ शुरुआत होती है और क्लोजिंग बैलेंस हमें फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो ऑलरेडी गिवन था, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 400 रुपीज़। तो हमने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो हमें अब कौन सा बैलेंस जो है वो खुद कैलकुलेट करना पड़ा, वो है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक। तो कैसे निकालते हैं हम बैलेंस, सिंपल सा फंडा है, हम अकाउंट को जैसे बैलेंस करते हैं वही तरीका हम यहाँ पे अपनाएंगे। हमने रिसीप्ट साइड का पूरा टोटल किया विच इज़ 25,000, ऐसे ही हमने पेमेंट साइड्स का टोटल किया और हमारा डिफरेंस कितने से आ रहा था, 6600 से। तो ये जो 6600 का डिफरेंस है ये हमारा बन गया कैश एट बैंक का क्लोजिंग balance. So this is how we prepare our receipt and payment account. Second main account NPO का होता है Income and Expenditure account. So what is this? Income and Expenditure account is very similar to Profit and Loss account, and not-for-profit organization usually prepare the Income and Expenditure account and a balance sheet with the help of receipt and payment अकाउंट। एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान देनी है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल ठीक उसी तरीके से बनता है जैसे कि हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो कि आपने पिछली क्लास में बनाना सीख चुका है। तो कैसे हम इसको बनाते हैं, हम इसमें ध्यान रखते हैं कि हमेशा जो आइटम्स हमारी करंट ईयर से रिलेट करती हैं और जो रेवेन्यू इन नेचर होती हैं, सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। In order to check the accuracy of the ledger accounts, they also prepare a trial balance. तो ये ऐसा नहीं है कि NPOs trial balance नहीं बना सकते, they can also prepare trial balance. तो उससे facilitate होगा, आप अपने आसानी से receipt and payment account, income and expenditure account और balance sheet को बना सकते हैं. So they might prepare a trial balance. Let us discuss the features of income and expenditure account. It is the nominal account, इसकी nature nominal है, hence the rule of nominal account will go, which is debit all expenses and losses and credit all incomes and gain. Second is it records only items of revenue nature, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सिर्फ revenue nature की items ही हम इसमें करते हैं रिकॉर्ड, और कैपिटल नेचर की जितनी भी आइटम्स होंगी उन्हें हमने करना है टोटली इग्नोर। No opening and closing balance of cash and bank are recorded in it. जैसे आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखा, वहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है कैश और बैंक का, तो वो यहाँ इनकम, आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देखने को नहीं मिलता।
Fourthly, all adjustments related to the current year are taken into consideration. जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त आप बहुत सी एडजस्टमेंट्स करते हैं, सिमिलरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते वक्त भी आप ठीक वैसे ही एडजस्टमेंट्स करेंगे. इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट पीरियड ओनली. सिर्फ और सिर्फ आप जिस करंट ईयर के लिए ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं उसी से जुड़ी आइटम्स को आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे. इसका मतलब प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की आइटम्स को आपने बिल्कुल भी रिकॉर्ड इसमें नहीं करना. सिक्स्थ इज इट्स पर्पस इज टू रिवील सरप्लस और डेफिसिट. जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना के हमें पता चलता है कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बना के हमें क्या पता चलेगा कि सरप्लस कितना है और डेफिसिट कितना है. सरप्लस कब होगा आपका? अगर आपकी जो इनकम साइड है वो ज़्यादा होगी एक्सपेंडिचर साइड के मुकाबले में. और डेफिसिट कब होगा? वाइसा वर्सा. अगर करंट ईयर में आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो चुके हैं इनकम के मुकाबले तो क्या हो जाएगा? फिर डेफिसिट बैलेंस आएगा. अब ये देखिए आपके सामने यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक यहाँ पे फॉर्मेट सा दे रखा है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2015 लिखा है. तो बहुत सारे एक्सपेंसेस के नाम आपको यहाँ दिख रहे हैं. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लाइटिंग, रेट्स एंड टैक्सेस, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड कोरियर, वेजेस एंड सैलरीज, इंश्योरेंस प्रीमियम. इसी प्रकार इनकम साइड पे अगर हम चलें तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, लॉकर रेंट, ये आपको दे रखा है यहाँ पे. तो ये बहुत सारी हमारी इनकम्स हैं जो कि हमें यहाँ पे क्रेडिट साइड पे देखने को मिल रही हैं. तो अब हमें कैसे निकालना है सरप्लस. ये सरप्लस हमने कैसे फाइंड आउट किया? सरप्लस को निकालने का तरीका यही है जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया था. नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए आपने अपनी दोनों साइड्स का टोटल करना है और जिस साइड का भी टोटल ज़्यादा होता है वो आप टोटल वाले कॉलम में लिख लेंगे. जैसे हमारे इस केस में हमारी इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है, इसमें से हमने अपनी जो एक्सपेंडिचर साइड है उसका टोटल माइनस किया और हमारा जो डिफरेंस था वो 1,18,400 का आया. तो ये हमारे पास आ चुका है एक सरप्लस. तो बिल्कुल जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं सिमिलरली हम क्या बनाते हैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो कौन सी चीज़ें यहाँ रिकॉर्ड होंगी? मेनली जो करंट ईयर से रिलेट करती हैं और दूसरा जिनकी नेचर क्या होगी? रेवेन्यू इन नेचर. तो ओनली रेवेन्यू नेचर की आइटम्स को हम रिकॉर्ड करेंगे. Let us discuss the difference between income and expenditure account and profit and loss account. Income and expenditure account is prepared by the NPOs, whereas profit and loss account is prepared by the business organizations. Objective क्या है? हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बना के फाइंड आउट करते हैं कि सरप्लस कितना है या डेफिसिट कितना है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना के हमें पता चलता है कि नेट प्रॉफिट कितना है या नेट लॉस कितना है. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. जो भी सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल फंड में और कभी भी उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते उसके मेंबर्स के बीच में. जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है? उसके ओनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है. प्रिपरेशन. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो हम किसकी हेल्प से बनाते हैं? मोस्टली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बाकी की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है. और प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने के लिए क्लास 11th में आपने सीखा था कि हमारा मेन बेस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस. नेक्स्ट बेसिस इज स्टार्ट्स विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है इट डज नॉट स्टार्ट विद एनी बैलेंस. ऑन द अदर हैंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट विद द बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट कॉल्ड द ग्रॉस प्रॉफिट और द ग्रॉस लॉस. And the third main statement prepared by the NPOs is the balance sheet. Not-for-profit organization prepare the balance sheet for ascertaining the financial position. तो ये हम सब जानते हैं कि बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है. The preparation of their balance sheet is on the same pattern which is followed by the business entities. तो यहाँ पे भी आपकी एसेट साइड होगी और एक लाइबिलिटी साइड होगी. However, there will be capital fund और इसे हम बोलते हैं
जनरल फंड। तो कैपिटल के बजाय आपको एनपीओ में बैलेंस शीट में जो नाम नजर आएगा वो होगा कैपिटल फंड का। एंड सरप्लस और डेफिसिट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर सरप्लस है तो कैपिटल फंड में वो ऐड होगा, अगर डेफिसिट है तो कैपिटल फंड से हम उसको माइनस कर देंगे। इसके अलावा इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू ऐड सम ऑफ द कैपिटलाइज्ड आइटम्स जैसे लेगेसीज, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। तो ये सब क्या होती हैं ये मैं आपको आने वाले टॉपिक्स में बताऊंगी। तो इन सभी को भी हम क्या करते हैं अपने कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं, क्योंकि इन सभी आइटम्स को क्या माना जाता है, कैपिटल नेचर की। नेक्स्ट इज besides the capital or the general fund, there may be other funds created for specific purposes or to meet the requirements of the contributors or the donors. तो यहाँ पे NPOs में कई बार स्पेसिफिक फंड्स भी होते हैं। तो वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंड्स जो होते हैं वो हम कहाँ शो करते हैं, उन फंड्स को हम अलग से अपनी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे दिखाते हैं। Sometimes it becomes necessary to prepare the balance sheet at the beginning of the year. Why we prepare it at the beginning of the year? In order to find out the opening balance of the capital fund. And capital fund को हम general fund भी कहते हैं। So this is how our balance sheet looks like. कैपिटल फंड जिसका ओपनिंग बैलेंस होता है, इसमें हम सरप्लस को ऐड करते हैं, डेफिसिट को माइनस करते हैं। इसके अलावा कैपिटल नेचर की आइटम्स को हम लाइबिलिटी साइड पे दिखाते हैं, जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस, स्पेसिफिक फंड्स जैसे कि बिल्डिंग फंड आपको मिला है, लेगेसी मिली। इसके अलावा अगर एंट्रेंस फीस का कोई पार्ट हमने कैपिटलाइज किया है तो वो भी हम दिखाते हैं, और कोई हमारे पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंड्स, तो वो सारे के सारे हम कहाँ दिखाएंगे, उनको लाइबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। ऐसे ही हम एसेट साइड की अगर बात करें तो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होंगे, उनका ओपनिंग बैलेंस, कुछ हमने नया परचेज किया है करंट ईयर में तो वो ऐड करेंगे, अगर कुछ सोल्ड ऑफ कर दिया कोई पार्ट तो वो माइनस करेंगे, उन पे लगी डेप्रिसिएशन भी हम घटाएंगे। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स अगर हमारे पास हैं तो वो भी हम लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारे पास और क्या चीज़ें हैं जो आती हैं लाइबिलिटी साइड पे। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ऐसे ही आपके पास क्लोजिंग स्टॉक अगर किसी कंज्यूमेबल आइटम का बच गया है, जैसे फूड स्टफ्स का, स्टेशनरी का। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की अगर आउटस्टैंडिंग है, या कोई भी सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की भी अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो भी आप दिखाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। सो ऑल दीज आइटम्स विल बी शोन in the balance sheet. Let us discuss the difference between the capital and the capital fund. The term capital is used by the business concerns, whereas capital fund is used by the NPOs. Capital is contributed by the owners of the business entity, whereas capital fund is the excess of assets over the liabilities of NPOs. Capital can be withdrawn by the owners if they so desire, while capital fund cannot be withdrawn by its members. Capital fund is made by capitalization of capital receipts like the legacy, life membership fees, entrance fees, surplus, etc., while capital is the contribution of the owners of the business. Let's have a quick revision whatever we discussed in this topic. Meaning of non-profit organization: those organizations which render service to the society and are not set up for earning profit but to render service. Receipts and payment account is basically the summary of the cash book. Income and expenditure account is prepared to find out the surplus or the deficit, and similar to profit and loss account. And balance sheet is a statement showing the assets and the liabilities. Thanks for watching.